respond, Anand Dubey ji, coming back to you in just a minute, but Tehseen Poonawalla, there has been a separate nation that has been demanded. And in fact, let me not go so far as a separate nation. Just 2 or 3 days ago, Rahul Gandhi in Jharkhand has made a statement saying, मुसलमानों का, he hasn't used the word मुसलमानों, but he has said, आप लोग बंटेगा मत, आप लोग बंटिएगा मत, तो हम इनको हरा देंगे. So if you say that कि आप बंट रहे हैं अगर आप जा रहे हैं, obviously you were referring, or he was referring to the minority vote bank. You know, if the BJP talks about the Hindus as a unit, why do you have a problem? Navika ji, thank you so much for having me on the show. Let me first clarify some things. It was said here that respected Bala Saheb Thackeray ji never supported the Congress. Bala Saheb Thackeray ji, while he was present amongst us, voted, his Shiv Sena voted for Pratibha Patil ji. Pratibha Patil, you can see she's Maharashtrian, they voted for Pranab Da. He supported the emergency, you've covered that. Let's go to the second issue. Congress, Rahul Gandhi wants to divide the country. Accepted. This gentleman, I quote Times of India, on 17th October 2024 said, and I quote him verbatim, not only census, but caste census will happen soon. The gentleman is the Home Minister of the country, Shri Amit Shah ji. I'm quoting Times of India. He's also dividing the country. Prior to that, Rajnath Singh ji promised it. Prior to that, the late Arun Jaitley ji promised it. They were also dividing the country. They were in an alliance with Raj Thackeray, who used to beat up North Indians who used to come into India. The BJP, they were in an alliance with that. While they were in government, they proposed that, there should be permits to enter into Mumbai. We objected. We said, and Times of India has covered it, that are you going to have visas to come to Mumbai? This is the BJP. Today they are preaching to us. Look, the fact of the matter is, अगर कोई बटेगा और कोई काटेगा, तो देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? कोई काटेगा तो काटने की हिम्मत कैसे हो रही? So I understand that Amit Shah ji and Devendra Fadnavis ji are not competent as home ministers. Therefore, this election, one will go. In 2029, the second will go, and we will have peace in this country. One last thing, just for everyone to understand, just one last time, minorities does not always mean religion. Minorities can be a ton of things, including linguistic, sexual, etc. But when you're saying India should be united and somebody is saying a religion should be united, there's a division between the two. Oh, please, keep these philosophical statements to yourself, Tehseen. When your own brother and a member of parliament from Karnataka actually has gone on and said that South India should be a separate country, please do not give us lectures on how to keep the country united. But Anand Ranganathan, is Tehseen Poonawalla preaching from the pulpit something that his own party does not believe or follow? गुड इवनिंग नाविका एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट. अपने भाई तहसीन पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा. पहले मैं अपने दूसरे भाई आनंद जी जो मेरे नेम से है क्या उस पे आऊंगा. उस पे मुझे एक जो आनंद जी ने कहा, बड़े प्रिय मित्र हैं, लेकिन मुझे एक पुराना गाना याद आ गया गाइड का. ये कह रहे हैं ना, बीजेपी पोलराइज करता है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट है और हिंदू मुस्लिम करता है. क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में. क्या इनको याद है कि ये संजय राउत जी आई थिंक इन्हीं के शिवसेना के फैक्शन में हैं. 2015 में उन्होंने जो बाल ठाकरे जी ने कहा था वो बात रिपीट करी थी कि मुस्लिम्स की वोटिंग राइट्स को हटा देना चाहिए. मैं आनंद जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये सच है और क्या वाकई मुस्लिम की वोटिंग राइट्स को हटा देना चाहिए? आनंद जी हाय ना में जवाब दीजिए. नाविका फिर मैं आप पे आता हूं. आनंद जी बताइए. आनंद दुबे जी, कंडेम करते हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड. भारत के मुसलमानों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संवैधानिक ताकत दी, अधिकार दिया मतदान करने का, उसको कौन हटाएगा भाई? किसने बात कही हटाने की? संजय राउत किसने हटाने की बात कही है? न तो कभी बाला साहब ठाकरे जी ने कही, न कभी संजय राउत साहब ने कही. ये नया सगुफा कहां से लाते हैं आप लोग? आप लोग अफवाह बनाने की कोई मशीन रखे हैं क्या अपने पास? जहां अफवाह बनाइए, एक जगह से अफवाह डालिए, दूसरी जगग से निकालिए, लोगों को भ्रमित करिए. न रोजगार पर कोई बात करे, न विकास पर कोई बात करे. नाविका पढ़ लीजिए, बस लोग उलझे रहे. आनंद जी देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, फैक्ट्स आपके सामने रखे. ये देखिए. Please state the source. Please state the source so that Anand ji can check. The source is also ironically the Hindu. लेकिन आप कोई भी सोर्स लेना चाहे ले सकते हैं. Well, तो आनंद जी प्लीज इस पे आप बात करिए. बट दूसरी बात नाविका, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं. देखिए,
आप ये बटेंगे तो कटेंगे, आप फ्रेज काफी पॉपुलर हो गया है पिछले 3 महीने में। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के केस में नहीं है। आयरॉनिकली जब योगी जी ने इसको पहली बार यूज किया था वो बांग्लादेश के केस में यूज किया था। कॉन्टेक्स्ट वाज बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर बीत रही थी। उसके बाद ही जब वहां पे रिजीम चेंज हुई उसके बाद ही योगी जी ने अपनी स्पीच में कहा था देखिए ध्यान रखें बटेंगे तो कटेंगे, और एकदम ठीक बात कही है उन्होंने। तो ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर बीजेपी उनके बाद से हिंदू यूनिटी की बात कर रही है, इंडियंस की यूनिटी की बात नहीं कर रही है, हिंदू की यूनिटी की बात कर रही है, जो कि एकदम जायज है। बिकॉज जो मुस्लिम्स हैं वो टोटली यूनाइटेड है अगेंस्ट बीजेपी, चाहे जितना भी करे। और ऑन रिकॉर्ड तहसीन भी ये जानते हैं, इन लिविंग मेमोरी, इफ देयर इज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट हैज डन मोर फॉर मुस्लिम्स देन एनीबॉडी एल्स, इट इज नरेंद्र मोदी। बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्लिम्स उनको वोट नहीं करते, वो अलग बात है कि वो प्रोपेगेंडा और उसके नैरेटिव के तहत ऐसा होता है। लेकिन मैं हिंदू की यूनिटी पे आना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, हिंदूज अगर बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं नाविका, कॉन्टेक्स्ट बीइंग बांग्लादेश जहां योगी जी ने बात करी थी, कश्मीर में तो बटे भी नहीं थे लेकिन फिर भी कटे ना। हिंदूज के पास नाविका वक्त बहुत कम है, आप प्लीज रियलाइज करिए। बीजेपी ये कब रियलाइज करेगी? 11 साल बीत चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदूज को बांटा जा रहा है। वो सारे एक्ट जो हिंदुओं को काट रहे हैं, जो आरटी का कंजक्शन 93 के साथ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हिंदू टेंपल्स पे कंट्रोल चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है, वक्फ एक्ट लगा हुआ है, ये कश्मीरीज को वहां पे दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। हिंदूज कट रहे हैं, बट नहीं रहे हैं, हिंदूज कट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। मैं ये चाहता हूं, राधिका जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, हिंदूज के पास ज्यादा टाइम नहीं है। राधिका जी इन पे एक्ट करिए। बिल्कुल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदूज को बटना नहीं चाहिए, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द बीजेपी। ऑन द अदर हैंड, इंडिया अलायंस पार्टनर्स आर गोइंग आउट एंड सेइंग